Shomorjit Haflungbar, and 3 others before the Honorable Guwahati High Court in PIL case number 51/2020, which was filed on 26/8/2020 by the petitioner Shomorjit Haflungbar and 3 others against the State of Assam, the Chief Secretary, Government of Assam, the Secretary to the Governor of Assam, the Principal Secretary T, North Cachar Autonomous Council, the Principal Secretary and North Cachar Hills Autonomous Council, and Devolal Gollosa, Chief Executive Member. They have, in that petition, they have alleged that the case of the petitioner, that is the petitioner here, Shomorjit Haflungbar, is that the North Cachar Hills Autonomous Council was created under the 6th schedule to the Constitution of India, and it is the oldest council under 6th schedule, and as per para 2(6)(a) of the 6th schedule, elected members of district council shall hold its term for a period of 5 years unless the district council is dissolved. The petitioner further states that the last election of North Cachar Autonomous Council was held in the month of January 2019, and the respondent number 6, Devolal Gollosa, was elected a member of the council and thereafter was appointed as the chief executive member. So this was a petition, and they have stated in their petition that many charge sheet has been filed against the respondent number 6. So he is not liable to be the chief executive member of the Autonomous Council. So here I want to mention here that in this case many arguments were laid down, giving many reference cases by the advocate of the respondent number 6, Devolal Gollosa, and which the Honorable Court, Honorable High Court have given their views in this regard from the different cases. And as per, if we go through the rules of the 6th schedule of the Autonomous Council, it is also found that a person shall be disqualified for being elected as and for being a member of the district council of an autonomous district if, whether or after the commencement of this rule, that is Rule 17 subsection 1 F, in this rule he has been convicted by a court of India of any offence and sentenced to transportation or to imprisonment for not less than 2 years unless a period of 5 years or such less period as the governor may allow in any particular case has lapsed since the release. So here in this case the Autonomous Council have also their rules regarding the who can be the member and who cannot be the member, and their allegation was that only charge sheet has been submitted and he should not be the chief executive member. So the Honorable High Court, after going all through the reference cases and all, has given its verdict on, given the judgment on 1/2/2021. This and the judgment was that they have gone through the proceeding paragraphs which was laid down under the reference cases, that the law now provides that such a person should be held to be disqualified as chief executive member. The law in fact is quite different, which has been pointed by the Learned Counsel for the respondent number 6, which is in the Rule 17(1) subsection F, where the only disqualification is where such a person has been convicted. It is not the petitioner case that the respondent number 6 has been convicted. In view of the above discussion, the PIL, public interest litigation, fails and it is dismissed. So there was no allegation against the respondent number 6, that is the chief executive member, Sri Devolal Gollosa. So the case was dismissed off by the Honorable High Court. तो माननीय पत्रकार बंधुगण, आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप सबका स्वागत है।
बहुत कम समय में आपका सूचित किया गया, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए, इसलिए हम आपको हार्दिक आभारी हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रकार बंधुगण, आप सबको ज्ञात है कि हमारे जो ऑटोनॉमस काउंसिल के माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवलाल गुरुसर जी, उनके खिलाफ समय समय पर बहुत ही आरोप लगाया गया है। लेकिन हम सब देख रहे हैं और आप सब भी देख रहे हैं कि ये सब आरोप बिल्कुल झूठे हैं और कहीं ना कहीं ये सब आरोप लगा रहे हैं ये सब विफल होते जा रहे हैं। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबको ज्ञात है कि माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के खिलाफ कुछ यहाँ के अतीत के पॉलिटिशियंस ऐसा आरोप लगाया कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के खिलाफ कोर्ट पर कार्रवाई चल रहा है, इसलिए जो उनका जो पद है वहाँ पर वो नहीं बैठ सकता। ऐसा करके उन्होंने हाई कोर्ट पर PIL दायर किया था और हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके विचार दिया है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी मैं हमारे साथ मौजूद हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष और हमारे इस भाजपा डिमासो जिला के लीगल एडवाइज़र और हमारे यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी डिमासो जिला के मीडिया पर्सन आप सबके सम्मुख इसके बारे में विस्तार से विषय रखें। धन्यवाद। एक तो वर्ड बोलिए, आपको पार्टी का अंदर में भी कोई ऐसा आएगा जो इंस्टिगेट करता है ये करने के लिए, ऐसे भी आएंगे? हम लोग अपने जो सोर्सेज जो है आपको पार्टी का अंदर में कुछ ऐसा चल रहा है, तो CM को गिरा के दूसरा कोई बैठे, ऐसे कुछ है नहीं? मेरा हिसाब से ये हिडन एजेंडा ही है, वो हिडन एजेंडा के थ्रू ये सब करवा रहा है। क्योंकि यहाँ जो जब से देवलाल गौरसा जी का लीडरशिप में काउंसिल फॉर्म हुआ है, तभी से यहाँ का जो डेवलपमेंट, यहाँ का जो कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व होके आया है कि हम लोग पहले सोच भी नहीं सकता था। फॉर एग्जांपल 10 महीना का जो सैलरी पेंडिंग थे, वो इलेक्शन MSC इलेक्शन होने से पहले क्लियर कर दिया गया था। जबकि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जब था उसी समय में 1 महीना का भी उन लोग सैलरी का जो पेंडिंग यहाँ रहता था वैसे वो क्लियर करने को वहाँ से कुछ मदद नहीं आता था। जो भी हो, यहाँ का जो काउंसिल, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इतना जो तालमेल मिल करके, और यहाँ का जो गौरसा जी का लीडरशिप में इतना जो अच्छा काम चल रहा है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट और कोई भी हो सब चल रहा है, उसी को इन लोग का जो है वो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो जा करके वो ठीक से ये जो मुद्दा है, मेन मुद्दा जो डेवलपमेंट जो काम कर रहा है, डेवलपमेंट वर्क्स जो आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जो आगे बढ़ रहा है, उसको करने में कुछ उसका रुकावट हो, ताकि आगे जा कर के इलेक्शन में ये गवर्नमेंट में, फलाना का गवर्नमेंट में कुछ काम कर नहीं पाया, ये बोलने का मौका मिले। शायद वही एक हाइडेन एजेंडा है, इसके लिए ये सब करवा रहा है। और जहाँ तक पार्टी का बीच में है, हम लोग ठीक ही है, सब ठीक ठाक है, सब मिलजुल के चल रहा है, ठीक है। और वही पहले से हम लोग का जो अपोजिशन है, एक तरह से बोलने से बदनसीब है, क्योंकि अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव लाइन जो भी खराब है उसको अच्छा से लाना चाहिए। लेकिन उन लोग का क्या है, जो जैसे कि सेंट्रल में चल के आ रहा है भटकाना, कोई भी चीज़ अपना गवर्नमेंट में हो तो लटका के रखते हैं, और जब अपोजिशन में हो तो कोई अच्छा काम होने से भी उसको भटका के रखो, वो ट्रैक से बाहर ले जाओ। वही यहाँ भी वही चल रहा है, जो जैसे कि सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी लोग कर रहे हैं, यहाँ भी पार्टी लोग वही कर रहे हैं। जो आफ्टर ऑल सब एक गुरु का चेला है, तो वैसे ही मैं तो वही कहना चाहूँ।
बस थैंक यू। फरवरी को एक लैंडमार्क जजमेंट हम लोग बोलेंगे विद ए केस विद रिगार्डिंग टू स्पेशली PIL केस नंबर 51 2020। एक लैंडमार्क बोलता है नॉट बिकॉज जो केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ असम काउंसिल एंड आर CM साहब उसका डिसमिस हुआ, बट लैंडमार्क कहते हैं क्योंकि ये केस के ऊपर जो आप लोग सब मालूम है एक क्लैरिटी लेके आया है, एक सफाई लेके आया है दिमाग साहब का सबके लिए, स्पेशली हम लोग का आम जनता के लिए। तो उसमें से जो बीजेपी पार्टी जो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन हो या हम लोग का जो बीजेपी सरकार जो काउंसिल जिसके अध्यक्ष जो CM साहब जवाहरलाल नेहरू जी है वो डायरेक्टली यूज था, वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक अटेम्प्ट था टू क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर वॉट एवर वेस्टेड या पर्सनल या वॉट एवर इंटरेस्ट जो भी हो जो पिटिशनर्स ने लर्नड पिटिशनर दिया था। तो एक क्लैरिटी आया, बहुत खुश है एक नंबर। सेकेंडली एक साफ जो हाई कोर्ट सिर्फ जज का नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड उसके साथ बेंच में बैठा है साथी जस्टिस ऑनरेबल आइचल डुअल बेंच ने एक जजमेंट दिया है। उसमें से रेफरेंस क्लियरली लिया है ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस इन 2014, वो स्पेसिफिक रिगार्डिंग जो हम लोग का अपोजिशन हो या पब्लिक कंफ्यूज था, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अपॉइंटमेंट ऑफ CM डिबार होगा नहीं। फिर भी उसके साथ साथ में 2019 में भी एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वहाँ में जिसके MPs और MLAs खिलाफ, जिसे जो हम लोग का 6th शेड्यूल काउंसिल का जो MACs ऑल्सो आर हेल्प लाइबल और सिमिलरली है, उसमें से रेफरेंस ये सब लेके एक क्लियरली स्पष्ट किया, क्लियरली प्रूफ किया कि देयर इज़ नो ग्राउंड्स टू डिबार और द CM ऑफ द काउंसिल, there's no law for the resignation of this such। साथ ही साथ हम लोग एक पार्टी भी पॉइंट आउट करने चाहते हैं कि जो लर्नेड ऑनरेबल जो पिटिशनर जी PIL डाला था, जो सब एक श्री समरजीत हाफलोंगबार हो, एक्स CM एक्स MAC था काउंसिल का, MLA छोड़ के भी, जो महेंद्र केम्पराय जी है वो एक एक्स EM एक 6th शेड्यूल हम लोग ऑटोनमस काउंसिल का EM भी रहा, और साथ ही साथ एक प्रेजेंट सिटिंग MAC ऑफ हाफलोंग सी दनील अंथसाबिया। दुख की बात है कि ये लैंडमार्क जजमेंट में ये ऑनरेबल सिटिंग और या एक्स मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनमस काउंसिल हाफलोंग के खुद उन लोग मेंबर्स थे, उन लोग में खुद 6th शेड्यूल के अंदर जो क्रिएटेड ऑटोनमस बॉडी जिसके पब्लिक सर्विस के लिए हम लोग अपना ऑटोनॉमी के लिए है दिमाग साहब के, उन लोग का रूल्स भी स्टडी नहीं करा था। एग्जाम्पल क्या था, जो 6th शेड्यूल पैराग्राफ 16 सब पार्ट 2 में सब पैरा 2 में क्लियरली लिखा है प्रोविजंस फॉर कैसे कौन किसको रिज़ाइन करना है, कैसे या गवर्नर रूल भी कैसे होंगे, एक CM को कैसे निकालना है। सो द कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट में क्लियरली उन लोग मेंशन कर रहा है कि द ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर रूल उनके अलग अलग क्वार्टर से डिमांड है, इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल प्रोविजंस ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं चलता है। तो जो देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग लॉ दैट डायरेक्टली डिमांड्स और एंटेल्स और एम्पावर्स द रेजिग्नेशन और द रिमूवल ऑफ अ CM ऑफ द ऑटोनमस काउंसिल, ये क्लियर था। साथ ही साथ जो 1951 में एज टाइम टू टाइम अमेंडेड दो असम ऑटोनमस रूल्स अंडर विच ऑल जो मेंबर्स, आज के दिन मैं भी मेंबर हूँ वहाँ के, उसके दिन में मैं इलेक्टेड हुआ था, उसके रूल्स के मुताबिक में हम लोग सब मेंबर्स हुए थे, और उसके रूल मुताबिक काउंसिल फॉर्मेशन ऑफ CM एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है, उसके रूल के हिसाब से हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। वो रूल्स को भी खुद उन लोग शायद नज़र में नहीं रखा है। बहुत दुख की बात है, क्या के लिए, क्यों वहाँ क्लियरली रूल नंबर 17 सब पार्ट 1 और सब पार्ट I में लिखा हुआ है, ग्राउंड्स फॉर जो मैडम ने बोला, ग्राउंड्स फॉर प्रोविजन ऑफ रिमूवल ऑफ और चेंज ऑफ लीडरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो ये सब लेके जानबूझकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो वहाँ में हम लोग खुद एफिडेविट में बोला हम लोग का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, क्या इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों ये सब अनजान करके इतना सब
एक धूल फैलाया, एक मिसकंसेप्ट फैलाया है। हम लोग का जो भाजपा के एक नेता जो काउंसिल लीड कर रहे हैं, उसको रिज़ाइन करना है, उसको जेल में जाना है, उसको उसका नहीं क्या डेवलपमेंट सेंट्रिक में कुछ नहीं, लेके हम लोग का अगेंस्ट खिलाफ कितने बोल रहा था, बहुत इसलिए दुख था। और खुश आज हम लोग पार्टी लोग सब खुश है, क्योंकि ये क्लैरिटी, एक सफाई इसमें ये जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट में देने में हम लोग को दिया है, इसलिए आज के दिन में हम लोग खुश हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग एक गुड गवर्नेंस पॉलिसी में चल रहा है, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बोलो, असम की सरकार जल्दी मोदी जी बोलो, या हम लोग ने एक मैंडेट पब्लिक ऑफ दिफासा ने अपना पार्टी को, अपना मेंबर्स को दिया है, उसके हिसाब से भी हम लोग उसी चल रहा है। और उसमें यहाँ क्लियरली वी ऑलवेज स्टेटेड, यहाँ हम लोग का दिमाग भाजपा में भी क्लियरली स्टेट करा है दैट वी आर ऑलवेज विथ द लॉ। तो कानून में भी लास्ट लाइन ऑफ द जजमेंट में भी देखा है, हाई कोर्ट मेड एन ऑब्जर्वेशन, ऑनगोइंग केस हो रहा है, हम लोग का जो चार्जशीट कहाँ हुआ है, लेट इट गो ऑन, वो भी चलते रहेंगे बोला है क्लियरली। बट देर इज़ नो प्रोविजन इन द लॉ, जो कानून में है, कोई किसी को सीएम को निकालना है चार्जशीट होके क्लियरली स्पष्ट किया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं let this be on record, let it be clear that this good administration, whatever formation हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस आए, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, काउंसिल लेवल, चलते रहे और पब्लिक जज करे कौन सा पार्टी, कौन सा कैंडिडेट, कौन सा ग्रुप, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करे, और अपने काम के ऊपर, अपने आगे वाले जमाने या लीगल मैटर्स में नहीं, अपना डेवलपमेंट मैटर्स में हम लोग जज करें और हम लोग साथ दिए। तो आज में ये ब्रीफ पॉइंट हम लोग दिया है। धन्यवाद। पार्टी भी बैठेंगे और पार्टी का ऑनरेबल काउंसिल मेंबर सीएम साहब भी है, लीगल एडवाइस भी है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर पार्टी पीपल, सो पार्टी विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। बट हम एज अ पर्सनल मेंबर ऑफ बीजेपी एंड द काउंसिल, हम लोग का सोच है ये सब एलिगेशंस या ये सब जो डिस्टर्बेंस के लिए हम लोग नहीं हैं। मेरे ख्याल में हम लोग तो जस्ट अब लोग का जिम्मेदारी लेना है कि अभी क्या है, हम लोग पब्लिक ने हम लोग मुद्दा दिया है, काम करो, और काम भी कर रहा है और काम और आगे भी करना है।